to you consistently. ये क्वेश्चन कंसिस्टेंटली पूछा जाता है कि कितने परसेंट मार्क्स आए तुम्हें, करेक्ट, अंडरस्टूड. सो राइट फ्रॉम जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, अंडर ग्रेजुएशन, this question has been asked, how much percentage you have get. So wherever else, banking industry में percentage has got huge value. Whatever bank transactions are happening, all the bank transactions are on the basis of percentage, correct? Can you tell me some terminologies where the percentage things are involved from banking industry or from any banking industry or any industry? Percentage कहाँ involved? Inflation rate, correct? अच्छे आंसर्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में. बैंक इंटरेस्ट, मार्केट शेयर GDP, is there. sir? GDP is also GDP is also told in talk in terms of percentage, discussion percentage के terms में होगा. So see, if you are, लोग बोलते हैं कि सर क्या है मैथमेटिक्स का क्या यूज है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में. इफ यू वांट टू बिकम IAS ऑफिसर, स्पेशली जो सिविल सर्विसेज के लोग रहते हैं वो बहुत कंप्लेन करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में कि सर इफ यू वांट टू बिकम सिविल सर्विसेज, मुझे IPS ऑफिसर बनना है तो मैथमेटिक्स की क्या जरूरत है, ऐसे लोग पूछते हैं. बट it is a very inferior question, because see, everywhere it is involved. Okay, you see the economics, if you see the GDP, many things are expressed in terms of percentage. So I will rate it as the most important topic in daily life as well as exam oriented. If you are thinking right from examination point of view, percentage has got the major weightage. Okay, so that is why I'm taking this particular topic, and I'm repeating this topic after every 3 to 4 weeks. So percentage is one of the major topic. Now I will explain you what is a weightage. Now I will just share my screen, and after sharing the screen I will explain that what is the weightage of percentage. Percentage का weightage क्या है इसके अंदर, ठीक है? Yes, so let's see. And बहुत ही अच्छा सी, अगर परसेंटेज में अगर जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, सर स्कूल में मैथमेटिक्स का इशू था एंड आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, बिलीव मी, इफ यू कैन डू परसेंटेज प्रॉपर्ली, अगर आपको परसेंटेज के साथ अगर आप फ्रेंडली हो गए तो यू आर गोइंग टू विन इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. बैंक एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ जो है, सेक्शनल कट ऑफ देखो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो पहले डिफेंसिव खेलेंगे. डिफेंसिव मींस डिफेंसिवनेस में आप देखोगे कि सर सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो जाए, बाकी मैं मैथमेटिक्स एंड लॉजिक से निकाल दूंगा, राइट? That is what many people do. But as far as civil services are concerned, preliminary examination mein there is a paper called as a CSAT, Civil Service Aptitude Test, for UPSC and MPSC civil services. There the mathematics, there the aptitude will come into the picture. Okay, so considering this, I'm explaining you the weightage of this particular topic. You should understand that mathematics का पढ़ाई चालू करना है तो speed maths से चालू करना है and percentage से शुरू करना है. If you want to study mathematics, start the study of mathematics, then you need to start from speed maths and percentage in that case. Okay. So percentage, okay, percentage, very important topic. आपको भी पता है, जो भी आप कॉमर्स एंड साइंस में अगर हो, आर्ट्स वालों का तो चलो 11th स्टैंडर्ड के बाद परसेंटेज मैथमेटिक्स के साथ रिलेशन रहता नहीं है, बट आगे जाके इश्यू हो जाता है. ये मतलब फॉर एग्जांपल आपने 10th स्टैंडर्ड के बाद में आर्ट्स लिया, आई डोंट नो ये बेस्ट 5 वगैरह, उसमें अभी 10th स्टैंडर्ड का क्या सिचुएशन है आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट मैथमेटिक्स शुड नॉट बी केप्ट इन ऑप्शन. कभी ऑप्शन में रखना नहीं चाहिए मैथमेटिक्स को, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में द पर्सन विल स्ट्रगल. कोई भी कॉम्पिटिटिव आज लेके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू थिंक अबाउट, ऐसा एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि जहाँ पे मैथमेटिक्स डजंट कम इनटू द पिक्चर, स्पेशली इन प्रिलिमिनरी एंड स्पेशली इन स्क्रीनिंग टेस्ट. Right, so that is why the importance of mathematics is huge, and the biggest topic in mathematics is percentage. Why it is the biggest topic? First of all, this particular topic is connecting you with multiple other topics. This particular topic is connecting you with multiple other topics. For example, percentage connects with profit and loss. अभी जो कॉमर्स के लोग रहेंगे, you might be knowing the importance. आप जो भी कैलकुलेशन करते हो, lot of times you use the percentage, right? कॉमर्स के लोग रहने दो, साइंस के लोग रहने दो, in terms of physics, chemistry, बहुत ज्यादा परसेंटेज का यूज किया जाता है अपने एकेडमिक्स के अंदर. Okay, then profit and loss के बाद में you can see that percentage. Another important thing is that simple interest and compound interest, the topic which is related with mathematics, simple interest and compound interest, completely based on the percentage.
ज्योमेट्री भी परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है, ज्योमेट्री। Okay, geometry means such kind of questions are always there. If length of a rectangle is increased by 40% and its breadth is decreased by 20%, what will be the percentage change in the original area of a rectangle? So many times we see that the percentage is frequently related with geometry as well. Then there is a topic called as time work and time distance. So in terms of time work and time distance. So in terms of time and work and time and distance, again mathematics percentage will come into the picture. There is one more topic called as mensuration. Mensuration is always there. Okay, if the area of a wall increases by, okay, if area of the wall increases by 20%, then what will be the percentage increase in the cost, cost required to paint that particular wall? What will be the actual increase in the cost required to paint that particular wall? Such kind of, I just want to tell you the interrelationship. बहुत सारे ऐसे है कि percentage topics is a centralized part. One more important thing, data interpretation, which is an integral part in MBA entrance examinations, CLAT examination, law, CET, civil services, public sector banks. Data interpretation is an integral topic. Graphs रहेंगे, there are many graphs and you need to solve the questions on that graphs. Okay, and you'll think that suppose the weightage of the data interpretation, that is the questions on the graph, is suppose 10 questions are there, you'll realize that at least 4 to 5 questions are directly on the basis of percentage. What is a percentage increase in the area of a city from 2001 to 2010? Percentage related question. What is the net percentage change in the rate of selling of car per year? Again, it is in terms of percentage. So highly important topic. It is connecting with all other topics, especially profit and loss is completely on the basis of percentage. Simple interest and compound interest is completely on the basis of percentage. So huge, highly important topic. Okay, बहुत ज़्यादा important topic है. And if you don't know the percentage, तो mathematics में you are going to struggle. If you don't know the percentage, basics of percentage, then in overall mathematics you are going to struggle. So make sure that you are thorough with this topic. Okay. चलेगा, 1 महीना इसका प्रिपरेशन करो, टाइम बहुत है आपके पास. ओके, तो you can take 1 month to prepare this topic, but if you can prepare this topic, believe my words, you are going to crack the mathematics section. Okay, so and there is a magical power in this topic. मतलब मैंने भी ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि ये टॉपिक में अगर आप अच्छा करते हो तो it automatically improves your thinking ability as well. Logical ability भी ये टॉपिक की वजह से इंक्रीज हो जाती है. That is something magical in this topic. So ये मैंने importance बताया percentage का, not only from examination point of view, but in our real life as well. Okay, yeah, some chats are coming. Fine, information rate and all correct. So ये मुझे बताना था percentage importance. अभी हम लोग देखेंगे कि some important formulas and examples भी देखेंगे. So the people who are old people, okay, अगर आपको topic का basic पता है, but you might not be knowing the examples because I am going to take the new examples. Okay. So don't miss this. So अभी I am going to take you the basic. अभी पहले चालू करते हैं कि आपको एक tabulation की एक जरूरत है, एक टेबल आपको पता होने की जरूरत है. So what is that table? You need to by heart that table, and the table is called as a reciprocal table. क्या बोलते हैं उस टेबल को? That table is called as a reciprocal table. Reciprocal में टेबल में क्या होता है? नंबर, reciprocal, okay, decimal and number, reciprocal, decimal and percentage. Okay, who is the one from the old batch students who can tell, वीडियो चालू करके ये कोई बता सकता है क्या 1 से लेके 16 तक रेसिप्रोकल टेबल मुझे बाय हार्ट है ऐसे करके कोई कॉन्फिडेंटली बोल सकता है क्या? Yes, no. Number 1 example. Number 1 नंबर अभी जाने 1 से तो कुछ होगा नहीं. Number is 2. Reciprocal is 1/2. Decimal is 0.5 and multiply by 100. The percentage is equal to 50%. So what I wanted to ask you is that 1/2 is nothing but 50%. This table you need to by heart. You should understand this till 1/16. 1/16 तक, 1/16 तक आपको पता होना चाहिए. Okay. So anyone can tell me. Okay, sir, ऐसा है. Okay. फटक से बोलो. I'm expecting. वीडियो चालू करने में प्रॉब्लम है तो ऑडियो से बोलो. हाँ बोलो सुना. या 1/2
हाँ 1/3 0.33. 1/3 0.33. मुझे कैल्सी का आवाज आ रहा है बाजू में, इज इट सो? No sir. बटन का आवाज आ रहा है? नहीं, चलो जाने दो। चलो 1/3 इज 0.33 नहीं, मुझे परसेंटेज बोलो। 33.33%। 1/4 25%. रॉन्ग। 1/4 इज कितना आएगा? करेक्ट, Yes sir. 25%। ये क्या आएगा सर? चलो 2%. 1/5 20%। 20%. 1/6 16. 16%. 16%. 16.67 बोल देते हैं हम लोग। देखो 16.66 और उसको 67 भी बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज रिकरिंग है। इट इज अ रिकरिंग डेसिमल। 16.6666 इनफाइनाइटल है, तो 666 की वजह से मैं 67 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके 1/7 14.28. 14.28%। 1/8 12.25. 12.5. 12.5. सर 12.5 सर. 12.5. 12.5%, करेक्ट। Sir. 1/9 Then 11.11. 11.11. 1/10 is 10%, that everyone knows. 1/11 is 9.09%, right? 1/11 is 9.09%. Okay. Then 1/12 बोलोगे तो यहाँ पे लेफ्ट में लिखता हूँ, अभी जगह नहीं है तो 1/12. If you see 1/12, 1/6 का हाफ कर दो, so 1/6 क्या आएगा आपका? 1/6 is 16.67. तो 16.67 का हाफ करोगे तो it will be equal to 8.33%. It will be equal to 8.33% in that case. 1/13 देखोगे तो 7.7%. 7.70. ओके 1/14 देखोगे तो 7.14. 1/14 उसका हाफ हो जाएगा 14.28 का हाफ हो जाएगा 7.14%, करेक्ट। 7.14%। 1/15 का क्या आएगा? 1/15 6.67. 1/15 करेक्ट। if you see 1/15, so 1/15 is equal to 6 point, देखो 1/5 का 1/3 कर दो, 1/5 is 20%, 20 का 1/5 is 20%, तो 1/5 को डिवाइड बाय 3 करोगे तो 1/15 हो जाएगा, राइट। 1/5 को डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 1/15 हो जाएगा। सो 20% डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 6.66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.66%, करेक्ट। Then 1/16 last particular thing, 1/16 is equal to 6.25%, 6.25%, right? So this is how the reciprocal table is, कि ये बाय हार्ट होना चाहिए। 1/2 is 50%, 1/3 is 33.33%, 1/4 is 25%, 1/5 is 20%, 1/6 is 6.66%, 1/7 is 14.28%, 1/8 is 12.5%, 1/9 is 11.11%, 1/11 is 9.09%, 1/12 is उसका भी ये हो जाएगा। 1/12 का कितना है? 8.33%, 1/13 is 7.7%, 1/14 is 7.14%, 1/15 is 6.66%, 1/16 is 6.25%. So 1/2 से लेके 1/6, 1/16 तक you should by heart this particular table. Okay, that's it. तो अभी इसके ऊपर देखो मैं शीट भी, we will take sheets in our lectures as well. Okay, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा conceptually जा रहे हैं अभी फिलहाल। तो suppose I am asking you the question, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। Suppose if I'm asking you the question, 0.6666 multiplied by 0.3333, इसका आंसर मुझे चाहिए ए बाई बी फॉर्मेट में। आंसर क्या चाहिए? ए बाई बी फॉर्मेट में मुझे आंसर चाहिए। तो 0.666 infinite into 0.3333, that is also till infinity. So I want the answer of this multiplication, but in terms of a fraction. A by b अच्छा नहीं लग रहा है, उसको हम लोग अलग तरीके से लिखेंगे। So it will be equal to a divided by b, इस तरीके से लिखेंगे। a by b फॉर्मेट में इसका आंसर क्या आएगा? This is what we wanted. So can you give me the answer? First of all, can you convert this 0.6666 in terms of a fraction? ये तो ऑलरेडी पता है आप लोगों को। This you already know.
0.333 ऑलरेडी नो, क्या होता है फ्रैक्शन? 1/3. 1/3, ओके। और 0.666 क्या हो जाएगा? 2/3. 2/3 in this case, correct? So ultimately it will be equal to, तो ultimately क्या हो जाएगा? 2/3 into 1/3 which is equal to 2/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/9, that's it. So इसका आंसर फ्रैक्शन फॉर्मेट में कितना आएगा? इसका आंसर फ्रैक्शन फॉर्मेट में आएगा which is equal to 2/9. इसका आंसर फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ जाएगा 2/9 in that case, ठीक है? तो सिंपल है, मतलब सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस क्लरिकल एग्जामिनेशन में आएंगे which are कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अगेन आई एम आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस, सो आई होप बाकी के लोगों को मुझे आंसर एक्सप्लेनेशन भी दे दो जो अभी आने वाले क्वेश्चंस के आंसर देगा, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ओके? सो अभी देख सकते हो 62.5% ऑफ, 62.5% ऑफ, ओके, 720। अभी मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा कि इसका आंसर कैसे निकालोगे? कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, पहले तो हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे, बाद में वर्ड बेस्ड एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेंगे, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। 1 सेकंड ना स्टूडेंट, थोड़ा मुझे 720 का 65% निकालना। 720 into 62.5 into upon 100. yes, wait, हाँ, just wait for some time। हाँ, क्या बोल रहे थे? बोलो, फिर से एक्सप्लेन करो। 62.5 divided by 100 into 720. नहीं, वो वैसा तो मतलब वो स्कूल का मेथड हो गया। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ईयर, यहाँ पे फास्टर तरीका चाहिए मुझे। 720 into 5/8, 62.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 आता है, तो उससे सॉल्व करेंगे तो आंसर 450 आ जाएगा। 5/8 1/8 का क्या होता है? 1/8 इज इक्वल टू 12.5, करेक्ट? यस। सो 5/8 करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 5 बोल रहे हो आप, सो correct, 62.5. So as she said correctly, 62.5 is nothing but 5/8, okay, of 720. लेकिन 5/8 कैसे निकाला? कैन यू एक्सप्लेन मी? क्योंकि देखो कॉमन आदमी को तो समझ में नहीं आएगा कि ये 5/8 है क्या? हाँ, तो कोई राइट। सो व्हाट आई डिड इज 62.5 अपॉन 100, सो 100 से ऐसे डिवाइड कर दिया 25 का टेबल से, सो 5/8 आ गया। करेक्ट। सो दैट इज अनदर वे, कन्वेंशनल मेथड से ही है। लेकिन यहाँ पे और एक आपको एक ब्रेकडाउन में बताना चाहता हूँ। पे मेरा ये आ रहा है क्या? इको आ रहा है? 12.5। हाँ, 62.5 को वी आर गोइंग टू ब्रेक इट एज 50%, as correctly said by this boy, 12.5%. Okay, so 50%, as everyone knows, 1/2. 12.5% everyone knows 1/8. If you can do that, which is equal to 10 divided by 16, and 10 divided by 16 रहने दो ना, multiply by 720. 16 का टेबल आ रहा है तो मजा आएगा आपको, ओके? बट ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करना है तो 5 and 8, 8 9s are 72, 5 9s are 45. So that way 450 will be your answer in that case. ठीक है, तो इस तरीके से भी यू कैन डू द ब्रेकअप, इस तरीके से आप ब्रेक भी कर सकते हो वो चीज को। देयर इज वन मोर थिंग विच यू कैन डू, और एक चीज है इसमें। और एक चीज कैसे करोगे? एक तो 60% ले सकते हो, मतलब देयर आर मल्टीपल वेज, जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से यू कैन डू, ओके? 75% क्या होता है वो भी पता है आपको। व्हाट इज 75% इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन? 3/4. 3/4, वो तो पता है। एंड 62.5 एंड 62.5 एंड 75 में कितने का डिफरेंस है? आई थिंक 12.5 का, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, तो 12.5 मतलब कितना फ्रैक्शन हो गया? 1/8 हो गया, करेक्ट? 12.5 इज नथिंग बट 1/8। उसको अलग तरीके से कैसे कर सकते हो? इसको अलग तरीके से कैसे कर सकते हो? यू कैन से दैट 75% में से, देखो, आई कैन राइट 62.5%, आई कैन राइट 62.5% एज 75% minus 12.5%, 75% minus 12.5%. 75 is what? 75 is 3/4. 75 is 3/4 minus 12.5 is 1/8.
चाहे तो ये भी कर सकते हो। ये अभी फ्रैक्शन कैलकुलेशन है। आप बोलोगे कि ये सर परसेंटेज, मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी दूसरा, मतलब ऐसे हो सकता है कि देयर आर हाइब्रिड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 to 3 डिफरेंट टॉपिक्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे इफ यू कैन सी परसेंटेज इज इन्वॉल्व एज वेल एज यहाँ पे अलजेब्रा इज ऑल्सो इन्वॉल्व, फ्रैक्शन कैलकुलेशन इज ऑल्सो इन्वॉल्व। So 3/4 minus 1/8 cross multiplication, 8 3s are 24 minus 8 3s are 24, correct? And 4 minus 1 is 4 divided by 8 4s are 32. So which will be equal to 20 divided by 32, which will be equal to 20 divided by 32. And if you can do that, if you can divide it by 4, 4 5s are 20, 4 8s are 32. तो ultimately आपका fraction भी 5/8 आ रहा है इसमें। तो ये भी तरीका है, 62.5 50% plus 12.5% और 75% minus 12.5%, ये भी इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। not at all डिफिकल्ट है, ऐसी बात नहीं है, बट इस तरीके से ऑल्टरनेटिव थिंकिंग यू शुड डेवलप ओवर हियर। ओके, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कंटिन्यू। इसमें किसी को डाउट है क्या ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन में? एंड आई डोंट थिंक इट इज मच डिफिकल्ट, सो इतना कुछ डाउट नहीं होगा। वन मोर थिंग, वी विल गो अहेड। ओके, तो सपोज अभी मुझे चाहिए 47.5% ऑफ 47.5% ऑफ, चलो 800। कैसे करोगे इसको? %47.5% ऑफ 800, तो इसका ब्रेक कैसे करोगे? हाउ यू विल बी ब्रेकिंग इट अप? नो वन? रैंडमली दिया है मैंने, ऐसे हो भी सकता है कि ब्रेक हो नहीं रहा है ठीक तरीके से। लेट्स चेक इट आउट। सर 380। हाँ, कैसे ब्रेक कैसे किया? सर 50 माइनस 2.5% किया, तो हाफ माइनस 1/4। 50 minus 2.5%। हाँ, ओके, हाफ हाफ माइनस माइनस 1/4. 40। ये 1/4। हाँ देखो, वन थिंग यू नो दैट 1/25, one thing which you know is 1/25 is equal to, sorry, one thing which you know is 1/4 is equal to 25%. 25%. 1/4 is equal to 25%. Okay, एक मिनट स्टूडेंट्स। वन बाय 4 इज इक्वल टू 25%, तो 1/40, तो 1/40 इज इक्वल टू, तो 1/40 इज इक्वल टू, देखो अभी मुझे 2.5% चाहिए ना, तो 2.5% को कैसे करेंगे? 2.5% इज नथिंग बट डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। इधर डिवाइडेड बाय 10 करें तो इधर भी डिवाइडेड बाय 10 हो रहा है, विच इज इक्वल टू 1/40। So which will come to 1/2 minus 1/40, which is equal to 40 minus 2 is 38. और ये 41s are 40 minus 2 are 2, so 38 divided by 42s are 80, 38 divided by 80 of 800। यहाँ पे तो जितना सिंप्लीफाई नहीं करोगे उतना अच्छा ही है ना। 38/80 को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 80 and 800 is simply just dividing by 800 divided by 80 इजीली हो रहा है। So it will be equal to 380। कितना हो जाएगा? 380 आ जाएगा। ठीक है, तो दैट वे द कैलकुलेशन लुक्स डिफिकल्ट, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं। इफ यू नो दैट परसेंटेज टेबल यू कैन प्ले अराउंड इजीली, आप ये कर सकते हो, राइट? वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, चलो और एक चीज पूछता हूं। 54.54% ऑफ 770, come on, can you give me the answer? Yes, so how will you do that? 420 बोल रहे हो,
आप बोलो कैसे ब्रेकअप करोगे, बोलो। So 1 by 11 is 9.09. So 1 by 11 into 6, if we do the 6 by 11, because 9 6 are is 54. Correct. 1 by 11 is 9.09. Okay, so 9.09, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे एंड इसको भी मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, तो इट विल बी इक्वल टू 54.54%, which is equal to 54.54. ओके, तो 54.54% को मैं ब्रेक कैसे करूंगा, 54.54% से ब्रेक कैसे करूंगा? हाँ, तो 54.54% जो है, इसको आई कैन टेल दैट इट इज नथिंग बट 6 by 11. इसको क्या बोल सकता हूँ? 6 by 11 बोल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन. ओके, बिकॉज ऑलरेडी हमने क्या किया है, ऑलरेडी 9.09% इज नथिंग बट 1 by 11. ऑलरेडी मैंने 9.09 जो परसेंटेज में है, आई एम कन्वर्टिंग इट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन विच विल इक्वल टू 1 by 11 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 विच विल इक्वल टू 6 by 11 मल्टीप्लाई बाय 770 मल्टीप्लाई बाय 770 विच इज इक्वल टू 11 sevens are 77, 6 sevens are 42, so which will be equal to 420. Okay. Now student, इसमें उसको कैसे समझ में आया, whatever that student is telling, उनको 9.09 कैसे समझ में आया, ऐसे कैसे क्लिक हो सकता है? 54.54 देखने के बाद 9.09 कैसे समझ में आया उनको? Can you tell me the answer? Repeated series, I guess. कौन सा सीरीज? Repeat like 5 4 5 4 like. यस, देखो रिपीट सीरीज है, देयर इज अ पैटर्न. आप अगर देखोगे ना स्टूडेंट्स, 1 by 11 देखोगे तो 1 by 11 इज इक्वल टू 9.09. ओके, 9.09, एंड यू नो दैट 9 ones are 9, so it is 9 and 9 is there. If you are doing it 2 by 11, you can multiply by 2 which is equal to 9 2s are 18, which is equal to 18.18%. Okay, if you can go for 3 by 11, you can tell me now. 3 by 11 is equal to कितना आएगा? 9 3s are 27, तो which is equal to 27.27 27.27 आ जाएगा उसके. 4 by 11 क्या आ जाएगा? 9 4s are 36, which is equal to 36.36 which is equal to 36.36. Got it? 5 by 11 45.45, 6 by 11 54.4554, 7 by 11 63.63, 8 by 11 72.72, 9 by 11 क्या आएगा? 81.81. करेक्ट. तो ये है, तो इट इज अ पैटर्न. ये जो है ना, ये पैटर्न हो चुका है आपका. दैट पैटर्न ऐसा है, ab.ab का पैटर्न है. ab.ab क्या पैटर्न है? ab.ab एक्सेप्ट दिस, ना एक्सेप्ट दिस 9.09 को छोड़ के ab.ab का पैटर्न दिखेगा. फॉर एग्जांपल 27.27 54.54, दैट मींस ये 1 by 11 का ही मल्टीपल है. दैट मींस ये 1 by 11 का मल्टीपल है. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, तो ये दिस इज अ पावर ऑफ अ रेसिप्रोकल टेबल. ये पावर है आपके रेसिप्रोकल टेबल का. ओके, दिस इज अ पावर ऑफ अ रेसिप्रोकल टेबल. अंडरस्टूड? तो ये दैट आई एक्सप्लेन यू दैट 54.5 तो कुछ भी रहने दो ना, इसके आगे once you understood the pattern that okay 27.27 मतलब कंफ्यूज नहीं होना है. अभी तो परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, तो यू आर कंफर्टेबल. बट when doing the examination, जब स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक एग्जाम्स में 20 मिनट्स में मैथमेटिक्स के जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, ओके 20 मिनट्स में व्हाटएवर क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व, 35 क्वेश्चन करना है, 30 क्वेश्चन करना है, दैट टाइम ये डिफिकल्ट हो सकता है कि व्हाई 27.27 ऑफ 720. इमेजिन करना इट कैन बी डिफिकल्ट, बट अगर आप प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो क्विकली आपका दिमाग क्विकली विल अंडरस्टैंड दैट ओके 27.27 इज नथिंग बट, मुझे पता है कि इट इज नथिंग बट अ मल्टीपल ऑफ 1 by 11. तो जस्ट रिप्लेस 27.27 विथ 3 by 11 एंड देन यू विल गेट द आंसर. ओके, देखो प्रॉब्लम क्या है कि प्रैक्टिस का मतलब क्या है? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रैक्टिस? बताओ प्रैक्टिस का मतलब क्या है? बहुत बार वर्ड यूज हुआ है स्कूल से लेके अभी तक, लेकिन व्हाट इज अ मतलब एग्जैक्टली उसका मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी? एंड प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए? प्रैक्टिस फॉर कंसिस्टेंसी, लाइक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें. कंसिस्टेंसी तो है, प्रैक्टिस मतलब कंसिस्टेंसी ओनली. आप प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस मींस व्हाट एंड प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए?
परफेक्शन लाने के लिए। परफेक्शन लाने के लिए, ओके। नाउ देखो उसके अंदर परफेक्शन इज ऑल्सो, यहाँ पे नहीं बोलूंगा क्योंकि एग्जाम में परफेक्शन नाम की कोई चीज एग्जामिनेशन में तो नहीं होती। यहाँ पे वाई द प्रैक्टिस इज गोइंग टू सेव यू, बिकॉज आपको कभी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐसे कभी देखो एग्जाम में क्या होता है, देखो प्रॉब्लम क्या है एग्जाम में, द स्टूडेंट हु आर सक्सेसफुल इन टू द एग्जामिनेशन and the student who are not successful in competitive exam, the major difference why you are successful in college examination 60 70 80% and why you are not successful in competitive examination, can you tell me the difference? पढ़ाई तो कॉलेज को भी हॉरिबल ही रहता है, पढ़ाई कॉलेज का पढ़ाई भी हॉरिबल रहता है, बुक्स आर डिफिकल्ट। तो आप कॉलेज में 60-70% मार्क लाते हो, लेकिन यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। आउट ऑफ 35 8-9 मार्क्स लाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। व्हाई इट इज सो? मेजर फैक्टर क्या है? लाइक रेगुलरिटी होती है तो हमें पता रहता है कि हमने ये पढ़ा था, तो एग्जाम में हमें याद हो जाता है। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो उसमें क्या होता है, इन अवर 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस और इन अवर कॉलेज एग्जामिनेशन वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस। हमें पता होता है कि ये टाइप का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ये टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। दीज आर द IMPs जो भी चलता था स्कूल के, जो भी मतलब मेरे स्कूल में जब स्कूल में था तब ऐसे कुछ गाइड्स वगैरह आया करते थे। नवनीत वाज द पब्लिकेशन, आई डोंट नो आप जब 10th स्टैंडर्ड में तब आपका पब्लिकेशन कौन सा था, बट इन दैट नवनीत पब्लिकेशन IMP, VIMP 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार ऐसे करके रखते थे। आई थिंक एंड दिस सिस्टम इज इन कॉलेज ऑल्सो नाउ। ये कॉलेज में भी अभी भी चल रहा है कॉलेजेस में। यू पीपल नो द बेटर, ऐसे होता है कि नहीं होता है, राइट? IMP डबल स्टार 2 स्टार ये तो आने ही वाला है। तो फैकल्टी ही लेक्चर के टाइम पे बता देता है कि यार ये क्वेश्चन तो आएगा एग्जाम में। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब एक्सपेक्टेंसी लेवल इज लेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब कैसे होगा कि सी इट इज लाइक एंड सी एग्जामिनेशन इज नथिंग बट द नेचर ऑफ योर जॉब। ये जो एग्जामिनेशन है ना, मैं थोड़े देखो क्या है कि मैं अभी थोड़ा अपर लेवल के ऊपर जाके बोल रहा हूँ, ठीक है? एग्जामिनेशन इज हैज द नेचर ऑफ योर जॉब, ओके? तो है ना, अगर आप देखोगे कि एवरी टाइम अ न्यू क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कहाँ से है, ये कौन से टॉपिक के है, इसके लिए क्या फॉर्मूला दिया था, एंड यू नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद दैट फॉर्मूला। ये तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं। व्हाट हैपेंस इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक में भी क्या होता है, बैंक में कस्टमर तो लाइन में खड़े रहते हैं। मंडे मॉर्निंग में जाओ कभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ, मंडे मॉर्निंग की हालत रहती है, देख लो, ठीक है? तो वो जो वहां पे जो काउंटर के ऊपर जो बंदा रहता है, जो वन कस्टमर आता है, उसका कुछ अलग प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करो। सेकंड बंदा आएगा, कुछ अलग प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम यू नीड टू सॉल्व। थर्ड बंदा आएगा, अलग प्रॉब्लम। देखो मतलब अल्दो आई प्रमोट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लेकिन मुझे कोई अगर पैसे भी देगा ना कि आप इधर जॉब लगेगा आपको, तो भी मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज सच अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। वो जाता हूँ वहां पे, देखता हूँ कि यार कैसे ये लोग सहन करते होंगे कस्टमर को। कभी कोई कस्टमर गाली दे रहा है, कभी गुस्सा होता है ना बैंक के अंदर, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो पीपल मतलब इंडिया में लाइन का बहुत इश्यू है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा झगड़े लाइन में होते हैं इंडिया के अंदर, ओके? तो मतलब ये चीज है दैट द नेचर ऑफ योर एग्जामिनेशन इज नथिंग बट द नेचर ऑफ योर जॉब। इवन सिविल सर्विसेज का जो अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखोगे, तो व्हाटएवर देखो जो आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर बनाने का काम रहता है ना, उसमें साइकोलॉजिस्ट्स आर आल्सो देयर। तो दे द व्हाटएवर थिंग्स यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इनटू योर रियल सिविल सर्विसेज, द सेम थिंग्स यू विल एनकाउंटर इन योर क्वेश्चन पेपर। क्या रे ये प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो चल रहा था, तो एक्सपेक्टेंसी इज अ प्रॉब्लम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है कि प्रैक्टिस, व्हाट हैपेंस ड्यू टू द प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है, नथिंग इज अनएक्सपेक्टेड whenever you are playing or whenever you are giving the examination. Nothing is unexpected when you are doing the practice. एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी मतलब there was a one cricket series जहाँ पे सचिन तेंदुलकर was there and Brad Hogg सचिन तेंदुलकर को आउट किया था, एंड ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर था, एंड when the cricket match got over, Brad Hogg went to the Sachin Tendulkar that okay, please sign this ball with your signature because I am very happy I took your wicket. Sachin Tendulkar signed that this is the last time, मतलब this thing will never come in your life again। मतलब एक तरफ से तेंदुलकर ने बोला कि
फिर से ये नहीं होने वाला है तुम्हारे लाइफ में दैट यू आर गोइंग टू टेक माय विकेट. ओके, एंड इफ यू सी सचिन तेंदुलकर पैटर्न अगर आप देखोगे तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सारे अब यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, आपको दिखाई दे देगा कि ये बारिश में प्रैक्टिस कर रहा है. मतलब आगे पिच के ऊपर पूरा पानी है और बॉलर बॉल डाल रहा है. बॉल डालने के बाद पूरा पानी के पूरे मतलब आप बोल सकते हो कि पूरा पानी पूरा उड़ रहा है. एंड इन दैट ही इज डूइंग द बैटिंग प्रैक्टिस. ओके, तो नथिंग इज अनएक्सपेक्टेड व्हेनेवर यू आर डूइंग द प्रैक्टिस. तो अगर आप पढ़ाई के बारे में प्रैक्टिस कर रहे हो तो एग्जाम में कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं आएगा. ओके, तो वही प्रॉब्लम है. मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए. दैट जो डिफिकल्टी लेवल है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मेजर फेलियर रेशियो क्यों है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बिकॉज you are not subjected to the you don't know the real time difficulty level. Okay, means what happens, you take one book and वो एक बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि एग्जामिनेशन में क्या डिफिकल्टी लेवल है. पहले से ही वो डिफिकल्टी लेवल के ऊपर आप जाओगे तो लाइफ विल बिकम इजियर वन इन दैट केस. Okay, so let's go for another question. तो अभी I'm hoping that you will be giving the answer for the same. So let's take 77.77% of 720. You give me the answer for it. Not much complicated. आ जाएगा. 630. कितना आएगा? 630. 630. Let's check it out. So 7.7% is nothing but 1 by 9 into 7.27 कर सकते हैं ना अलग. 1 by 9 is equal to 11.11%, correct? yes sir, into 7 करेंगे 7 by 9. इसको भी into 7 करोगे, इसको भी into 7 करोगे, इसको भी into 7 करोगे तो which is equal to 7 by 9, okay, multiplied by 720. 7 by 9 multiplied by 720, which is equal to 9 8s are 72, 7 8s are 56. So 560 will be your answer in that case, correct? sir. yes sir. हाँ, तो ये है मतलब whenever you will see कि 11 के कुछ पैटर्न में आ रहा है 22.22, 33.33, 44.44, 55.55, that means it is a multiple of 1 by 9. That means it is a multiple of 1 by 9. It is understood. तो that way first of all अलग तरीके से थोड़ा परसेंटेज कैसे निकालते हैं that we saw. Okay, इसके बाद में एक कंसेप्ट आता है. There is one more concept called as a नेट परसेंटेज चेंज. और सबसे पहले तो मतलब एक देयर इज वन फॉर्मूला दैट एवरीवन शुड नो. दिस फॉर्मूला परसेंटेज टॉपिक ही ये फॉर्मूला से चालू होता है. परसेंटेज इंक्रीज, ओके, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू, ओके, वेरी सिंपल, बहुत बार रिपीट हो चुका है फॉर्मूला आपके स्कूल में. एक्चुअल इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, एक्चुअल इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू. ओके, एक्चुअल इंक्रीज, अभी ये थोड़ा समझ के ले लो. Actual increase upon original value multiplied by 100, that is the percentage increase. Now percentage increase अगर आप देखोगे ना तो एक simple चीज, suppose if I can ask you a simple question, so suppose the original value is 600, and I need to increase it by 40%. So what will be your answer in this case? I need to increase it by 40%. What will be your answer in that case? So can you tell me? So first of all, what is 40% of 600? So 40% of 600 is 240. 40% of 600 is 240. And if you are increasing 600 by 240, which is equal to 840 rupees. So that way. वही, so the same thing percentage increase में क्या है कि 40% increase. अभी है ना 240 कैसे आया, देखो इसका मतलब समझ के ले लो. अगर ये conceptually understand करो, what do you mean by increasing 600 by 40%? That means 600 तो है ही, लेकिन 600 में ऐड क्या करना है? 600 में ऐड करना है, we need to add 40%. We need to add 40% of 600. We need to add 40% of 600 in it. Okay, that is the meaning. लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर 60% को 40% से इंक्रीज करना है, मतलब कैसे होगा? Will it be 640? No. तो 600 तो है ही, प्लस 40% of 600 we need to add. 600 तो है ही, प्लस 40% of 600 we need to add. So 600 plus what is 40% of 600? देखो परसेंटेज के टर्म्स में ना 10% एक बहुत अच्छा की है. 10% की इज वेरी गुड.
ऑलवेज गो फॉर 10% एंड देन मल्टीपल करो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर 10% ऑफ 600. 10% ऑफ 600 इज इक्वल टू 60. अभी 10% 60 आ रहा है तो 40% कितना आएगा? 40% इज 4 टाइम्स ऑफ 60 which is equal to 240, which is equal to 240. So your answer is equal to 840 in this case. देखो ये अंदर का प्रोसेस है, अंदर का प्रोसेस है. See, when you will become successful in the examination, when you will become successful in the examination, only when you can do such kind of a calculations. आपके मतलब पेपर के ऊपर नहीं करोगे, आप विजुअलाइज करोगे these calculations, then only you can able to solve the questions in a less amount of time. Have you understood? तो ये जो बात बोल रहे हो ना 600 प्लस 40% ऑफ 600 तो 600 प्लस 240 840, तो 840 आप डायरेक्टली लिख रहे हो. दैट शुड हैपन, दैट थॉट प्रोसेस शुड हैपन. द पेपर पेंसिल टच मिनिमम करना है इसके अंदर. पेपर पेंसिल टच जो है वो मिनिमम करना है इसके अंदर. ठीक है. सो दैट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज. ओके. सो ये हमने परसेंटेज इंक्रीज का. द सेम थिंग गोज फॉर परसेंटेज डिक्रीज एज वेल. द सेम थिंग गोज फॉर परसेंटेज डिक्रीज ऑल्सो. इसके बाद में कुछ ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन रहेंगे वेबसाइट्स के ऊपर. वी विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस एज वेल. ओके. तो परसेंटेज डिक्रीज का कांसेप्ट समझ के ले लो. वेरी सिंपल. परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू एक्चुअल डिक्रीज. परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू एक्चुअल डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू. एक्चुअल डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू. एक्चुअल डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू. इंक्रीज है तो इंक्रीज, डिक्रीज है तो डिक्रीज. एक्चुअल डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. दैट इज नथिंग बट परसेंटेज डिक्रीज. तो मैं आपको अगर पूछूंगा एट अ सिंपल क्वेश्चन, इफ आई आस्क यू 750 को डिक्रीज करना है मुझे 40% से, कैन यू गिव मी द आंसर ओरली? 750 को 40% से डिक्रीज करना है आपको. अभी तक आ जाना चाहिए था आंसर. 100. 450. 450. So first of all you need to understand that what is 40% of 750. तो 40% के लिए 10% निकालो. 750 का 10% क्या आएगा? 750 का 10% is equal to 75. तो 40% क्या आएगा? 40% देखोगे तो 75 का 4 टाइम्स. 75 का 4 टाइम्स टेबल तो आता नहीं 75 का, लेकिन आई नो दैट 75 का डबल इज 150. 75 का डबल इज 150 एंड 150 का डबल इज 300. तो मुझे पता है कि 75 का 4 टाइम्स करोगे तो 300 आएगा. तो इसको डिक्रीज करना है 300 से, इसको डिक्रीज करना है 300 से. तो 750 को डिक्रीज कर दो एक्चुअली 300 से, इट विल बिकम 450. दैट्स इट. ओके. सो दैट वे यू कैन डू द परसेंटेज डिक्रीज. तो परसेंटेज डिक्रीज में क्या है? 750 है, you need to decrease it by 40%. take 40% of 750, it is 300. decrease 750 by 300, which is equal to 450 in this case. okay. तो ये भी एक कर दिया. अभी थोड़ा ऑनलाइन जाते हैं, गूगल के ऊपर कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो वी विल सॉल्व दोस क्वेश्चन. मेरे खुद के कभी क्वेश्चन रहते नहीं है बिकॉज अभी वही सेट यूज कर करके आई थिंक. तो लेट्स सी सम इंडिया विक्स के ऊपर जाते हैं. एक वेबसाइट जो है मैंने लास्ट टाइम भी दिया था आपको, इसके ऊपर देखते हैं इफ यू कैन. चलो ये डालने से अच्छा सीधा पर्सन यही डाल देते हैं ना. वेट, यहाँ पे डालते हैं परसेंटेज क्वेश्चंस. टेक एनीवन, कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीडीएफ ले लेते हैं. चलो क्या आता है? स्मार्ट कीड़ा, एग्जाम स्कार्ट, एग्जाम पंडित, कोई भी एक ले लो. चलो स्मार्ट कीड़ा का ले लेते हैं, नो इश्यूज. सो लेट्स सी कि क्या आ रहा है उसमें. कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो. एंड सी कोई भी एग्जाम ले लो, आपका ये तो वही रहने वाला है, राइट? टेक एनी एग्जामिनेशन, क्वेश्चंस आर गोइंग टू रिमेन द सेम. क्वेश्चंस एंड सिलेबस, उसके पीछे का जो भी ये होगा, दैट इज गोइंग टू गेट सेम. सर ये देखते तो अच्छा नहीं लगता सर, इतना सब ब्लैक ब्लैक ये इतने सारे क्वेश्चन देख के अच्छा नहीं लगता है. बट दैट इज हाउ यू शुड बिकम फ्रेंडली विथ. ओके, इनके साथ ही फ्रेंडली होना है आपको. ओके. सो वाओ, अच्छा क्वेश्चन आया ना. A man distributes 10%, 18%, 22% of his salary into his 3 children who spend 40%, 60% and 25% of the total of that amount respectively. The difference between the total amount left with the children and the man is 1015. What is the salary of a man? Just बोलो. तो इसके लिए सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट लगेगा. थोड़ा नीचे के क्वेश्चन देखते हैं.
ये देखो, ये एक क्वेश्चन आना चाहिए आपको। ओके, ये देखो एबी डिविलियर्स का क्वेश्चन, आई एम टेकिंग इट स्नैपशॉट, अलग से ले लेता हूं मैं। ओके, सो आई एम टेकिंग इट डिफरेंटली, पेंट में जाके इसको अलग ले लेता हूं सो दैट वी कैन फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। एबी डिविलियर्स का जो क्वेश्चन है, आई टेक अलोंग विद द ऑप्शंस एज वेल। ओके, ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ले लो, अपने यहाँ पे ले लो ये क्वेश्चन, फॉर्मूला लिख लो। नाउ ये क्वेश्चन देख लो, एबी डिविलियर्स smashes 86 runs against Australia in 16 balls. If he has scored in boundaries 4s and 6s only, find the maximum percentage of runs he scored by hitting 4s. Yeah. Now can you have the option here? इसको बोलते हैं कि परसेंटेज को बाकी टॉपिक्स के साथ कनेक्ट किया है। यस, देखो सिंपल बात है, क्रिकेट का एक रूल तो सबको पता है, इंडिया में क्रिकेट इज वेरी फेमस। एक रूल तो आपको पता है कि बाउंड्री मीन्स 4 एंड 6 मीन्स 6। ओके, जिसको हिंदी में छक्का बोलते हैं आप लोग, राइट। तो 86 रन्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन 16 बॉल, तो 16 बॉल में 86 रन्स मारे उसने। इफ ही स्कोर्ड इन बाउंड्रीज एंड सिक्सेस, उसने कुछ किया नहीं, सिंगल एंड डबल निकाला ही नहीं उसने खाली बाउंड्रीज एंड सिक्सेस मारे। फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रन्स ही स्कोर्ड बाय हिटिंग 4s। मतलब मैक्सिमम 4 मारना है उस, देखो कम ऑन स्टूडेंट, नाउ यू कैन गेट द आंसर, बताओ। क्वेश्चन समझ में आया कि फिर से एक्सप्लेन करो? 86 रन्स निकाले हैं 16 बॉल्स में। ओके, एंड उसने खाली बाउंड्रीज ही मारे एंड 6 ही मारे उसने। फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रन्स ही स्कोर्ड बाय हिटिंग 4s। तो ज्यादा से ज्यादा अगर वो बाउंड्री मारता है, ओके, ज्यादा से ज्यादा अगर वो बाउंड्री मारता है तो ज्यादा से ज्यादा कितने रन वो बाउंड्री मार के ले सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। आप अपना कैलकुलेशन करो, मैं मेरा कैलकुलेशन करता हूं। मेरे लिए भी ये फ्रेश ही क्वेश्चन है, आपके सामने मैंने सर्च किया। यस गाइस, हाँ आंसर आएगा कि नहीं आएगा बोलो, कि सर नहीं आएगा बता दो, सर नहीं आएगा आंसर, तब मैं सॉल्व करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इफ यू वांट टाइम यू कैन टेक द टाइम एज वेल। दिख तो रहा है ना क्वेश्चन सबको? छोटा सा दिख रहा है लेकिन दिख रहा है, राइट? देखो अब यहाँ पे, हाँ इक्वेशन यहाँ पे मैटर करेगा, ठीक है। इक्वेशन मैं करता हूँ कन्वेंशनल वे से। देखो x, सपोज उसने x बाउंड्रीज मारे, कितने बाउंड्रीज मारे? x बाउंड्री मारे, x बाउंड्रीज मारे उसने, एंड उसने y 6s मारे। y क्या किया उसने? y 6s, x बाउंड्रीज एंड y 6s। ओके, तो माय फर्स्ट इक्वेशन हियर, कैन एनीवन टेल मी द फर्स्ट इक्वेशन? देखो कितने 4 और कितने 6 मारे होंगे? कितने 4 और कितने 6 मारे उसने, बता सकते हो आप? नंबर ऑफ बाउंड्रीज एंड नंबर ऑफ सिक्सेस को ऐड करूंगा तो कितने होंगे? 16 एग्जैक्टली, क्योंकि 16 ही बॉल डाले हैं ना, और हर बॉल को उसने 6 एंड बाउंड्री तो मारा ही है, तो x + y = 16। दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट इक्वेशन। कितने बार उसने मतलब बॉल को, बाउंड्री को टच किया है या बाउंड्री के बाहर गया है, 6 गया है, तो कितने बार ऐसे हुआ? 16 बार, क्योंकि 16 क्या, उसने कुछ किया ही नहीं है दूसरी चीज। ओके, उसने कुछ किया ही नहीं है। If he only scored in boundaries 4s and 6s, then the maximum percentage of runs he scored by hitting 4। ऐसे एज्यूम किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री मारेगा तो कितना होगा उसके अंदर, राइट? अभी रन्स कैसे होंगे? x बाउंड्रीज मारे तो दैट विल बी इक्वल टू 4x, करेक्ट। बाद में y 6s मारे तो y 6x की वजह से y 6s की वजह से कितने स्कोर हो जाएगा उसका? दैट विल बी इक्वल टू 6y, करेक्ट ना? 2 6 मारे तो 2 into 6 12 रन्स हो जाएंगे। 3 6 मारेंगे तो 6 3 18 हो जाएंगे, which is equal to what are total number of runs? Total number of runs are equal to 86, which is equation number 2,
करेक्ट। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आया क्योंकि इक्वेशन का भी आपको नॉलेज मिल रहा है इसके वजह से। दिस इज अ कंबाइंड इक्वेशन। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लोअर लेवल एग्जामिनेशन एंड अ हायर लेवल एग्जामिनेशन। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। लोअर लेवल एग्जामिनेशन देयर विल बी ओनली वन concept will be involved, but in higher level examination there will be two and more than two concepts will be involved. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लेरिकल में क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली परसेंटेज के बेसिस के ऊपर होगा, लेकिन प्रोबेशनरी ऑफिसर के पेपर में आएगा कॉम्बिनेशन, इक्वेशन का एंड परसेंटेज का कॉम्बिनेशन। सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन अलग लेवल का आएगा, एमपीएससी में क्वेश्चन अलग लेवल का आएगा। दैट इज हाउ इट इज। सो आई थिंक 2 इक्वेशंस 2 अननोन। आपको पता है क्या कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, स्कूल में पढ़ा था आप लोगों ने, राइट। सो व्हाट आई डू इज दैट 4x है ना, तो मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 by 4 सो दैट वो क्या होगा देख लो, 4x plus 4y 4x plus 4y इज इक्वल टू 16 4 जा 64 16 4 जा 64। अभी मैं माइनस कर दूंगा तो माइनस 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 4x कट हो गया, 6y minus 4y इज इक्वल टू 2y 6y minus 4y इज इक्वल टू 2y 86 minus 64 86 minus 64 is equal to 22 correct। so y is equal to how much, y is equal to how much, y is equal to 11। मतलब उसने 11 सिक्सेस मारे, एंड बाउंड्री कितने मारे उसने, बाउंड्रीज कितने मारे, 5 बाउंड्रीज मारे उसने, 11 सिक्सेस एंड 5 बाउंड्रीज। ये अभी मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है, ये एक मेरा इक्वेशन बन रहा है इसके अंदर। 11 सिक्सेस एंड 5 बाउंड्री, 16 बॉल में 86 रन्स। ये आया क्या समझ में आपको कि कुछ डाउट है इसके अंदर? सर हाँ बोलो सर, वो सेकंड इक्वेशन नहीं समझा सर। हाँ कौन सा? हाँ ये नीचे वाला। हाँ सर, वो 4x plus 6y equal to 86 ये फॉर्म कैसे किया? देखो उसने देखो मुझे स्कोर चाहिए 86। अभी उसने बाउंड्रीज कितने मारे हैं, बाउंड्रीज x बाउंड्रीज मारे हैं उसने, करेक्ट। सो x बाउंड्रीज के वजह से स्कोर कितना होगा उसका, एक बाउंड्री मारे तो स्कोर कितना होगा 4, 2 बाउंड्रीज मारे स्कोर कितना होगा 8, 3 बाउंड्रीज मारे स्कोर कितना होगा 24, राइट। x बाउंड्रीज मारे 4 की स्कोर कितना होगा 4x, विल मल्टीप्लाई बाय 4। x 6 मारा स्कोर इज 1 into 6, x 6 मारा स्कोर विल बी 1 into 6। 2 6 मारे स्कोर विल बी इक्वल टू 2 6 मारे तो स्कोर क्या हो जाएगा 6 into 2 12। 3 6 मारे स्कोर क्या हो जाएगा 6 into 3 18, करेक्ट। सो दैट वे इट इज। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे y सिक्सेस मारे तो स्कोर क्या हो जाएगा, y सिक्सेस मारे तो स्कोर क्या हो जाएगा 6 into y। ओके तो दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे 6y लिखा है। तो दैट इज हाउ द इक्वेशन इज मेड। एंड 4x and 6y, 4x and 6y लिखोगे तो स्कोर क्या हो जाएगा, 4x and 6y लिखोगे तो स्कोर क्या हो जाएगा, स्कोर इज इक्वल टू 86, स्कोर इज इक्वल टू 86। ठीक है तो सर कोई मतलब ऐसा मेथड नहीं है कि क्या मतलब एक ही बार में समझ जाए कि आंसर क्या है, लाइक क्विक मेथड? एक मिनट बताता हूँ आपको। हाँ क्या बोल रहे थे बोलो? क्विक मेथड चाहिए, देख लेंगे क्विक मेथड। पहली बात तो ये कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करो, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें लर्निंग के ऊपर फोकस देना है। ऑफ कोर्स क्विक मेथड, शॉर्टकट, सब चीजें अवेलेबल है, ओके। लेकिन अभी यहाँ इक्वेशन कैसे सॉल्व किया हुआ है समझ में, हाउ x इज इक्वल टू 5, हाउ y इज इक्वल टू 11, वो तो आया समझ में कि 16 बॉल में 86 रन किए हैं, मतलब 11 बॉल में उसने 6 मारे, विच इज इक्वल टू 66 रन। एंड बचे हुए 5 गेंद में 5 बॉल्स में उसने बाउंड्रीज मारे, तो 5 4 जा 20 एंड 66 plus 20 is equal to 86 in this case. Okay, so if he scored in boundaries and sixes only, then find the maximum percentage of runs he scored by hitting fours. Okay, so maximum percentage of runs क्या होंगे? Okay, now students, इसमें देख सकते हो, अभी यहाँ पे और एक मैं टेबल बना के दिखाता हूँ आपको। Okay, अभी यहाँ पे एक सपोज और टेबल बना दे कि मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 4 ज्यादा एंड 6 कम हो? एज ऑफ नाउ तो मेरे 11 सिक्सेस एंड 5 फोर्स आए हैं, whereas मैं टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल रन्स लिखता हूँ, टोटल रन्स इज इक्वल टू 86 आ रहे हैं मेरे। लेकिन चलो मैंने 10 सिक्सेस मारे, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, ऊपर मैंने उल्टा लिख दिया। ओके, x मेरे नंबर ऑफ बाउंड्रीज थे, तो मेरे नंबर ऑफ बाउंड्रीज आर 5 एंड माय नंबर ऑफ सिक्सेस आर 11, माय नंबर ऑफ सिक्सेस एंड 11 व्हिच इज इक्वल टू टोटल। सो टोटल आ रहा है मेरा 86, टोटल आ रहा है मेरा 86। लेकिन सपोज मेरे बाउंड्रीज मुझे इंक्रीज कर देना, मैक्सिमम
4 मारने हैं मुझे, तो कितने मैक्सिमम परसेंटेज हो सकता है? लेकिन पहली बात तो ऐसा हो सकता है क्या, लेट्स सी। तो सपोज मैंने 6 फोर्स मारे तो मेरे 10 6 हो जाएंगे, करेक्ट? तो 6 4 24 एंड देख लो यहाँ पे कितना टोटल हो रहा है, बताओ फटाफट। 6 4 मारे मैंने, मतलब बाउंड्रीज कितने मारे? 6 बाउंड्रीज मारे एंड 6 कितने मारे? 6 से 10 मारे, तो दैट विल बी इक्वल टू 84। तो मैच तो नहीं करेगा। सपोज मैंने 7 बाउंड्रीज मारे एंड 9 6 मारे, 7 4 28, 9 6 54, 54 एंड 28 वो भी नहीं होगा कुछ। सपोज मैंने 8 बाउंड्रीज मारे एंड मैंने 8 बाउंड्रीज मारे एंड मैंने 8 6 मारे, 8 बाउंड्रीज 8 6 चलेगा क्या? 8 4 32 एंड 8 6 48, 32 एंड 48 चलेगा क्या? ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, करेक्ट? तो सब कुछ कम 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 होते जा रहा है। दैट मींस यही बेस्ट सिचुएशन है, 5 6 एंड 11 6 एंड 5 बाउंड्रीज। तो मैक्सिमम अभी बाउंड्रीज कितने मारे उसने? बाउंड्रीज 5 मारे, तो टोटल स्कोर कितना किया है? टोटल स्कोर किया है 86। देखो ये केस कंसीडर करो, पहला ही केस जो हमने निकाला है, टोटल हमने 86 लिया है। 86 में से बाउंड्रीज कितने मारे हैं? 5 बाउंड्रीज मारे हैं। 5 बाउंड्रीज मतलब स्कोर क्या हो गया? 20 स्कोर हो गया, राइट? तो 20/86 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 20/86 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आई थिंक यू विल गेट द आंसर ओवर हियर। क्या आंसर मिलेगा आप बताओ उसके अंदर? 20/86 का स्कोर क्या हो जाएगा उसके अंदर? सो अप्रोक्सीमेटली तो बता है ना, 20/80 लूंगा, 20 अगर मैं 80 लूंगा तो दैट इज ऑलमोस्ट 1/4। 1/4 इज नथिंग बट 25%, ओके? लेकिन यहाँ पे 20/80 नहीं है, 20/80 से भी ज्यादा है। 20/80 होगा ना, 20/80 होगा तो 25% आ रहा है, लेकिन अभी 80 नहीं है, 80 के जगह पे थोड़ा ज्यादा है, तो 25% आना चाहिए कि उससे कम आना चाहिए? ऑब्वियसली उससे कम आना चाहिए, तो आई थिंक आंसर शुड बी 23.25। और आप कैलकुलेट मोबाइल के ऊपर एक्चुअल कैलकुलेशन करके देखो, 23.25 आएगा। लेकिन मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने अप्रोक्सीमेटली क्या किया, मैंने ऐसे किया कि चलो यार 6 को हटा दो, 6 को हटा दो, 6 को अगर मैं हटा दूंगा तो इट विल बी 20/86। ये 6 को अगर मैं रिमूव कर दूंगा, ये 6 को अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो दैट विल बी 20/80 विच इज इक्वल टू 1/4। लेकिन 1/4 इज इक्वल टू 1/20, 1/4 इज इक्वल टू 25%, ओके? लेकिन अभी 80 नहीं है, ये अभी 86 है। इसका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर जो ना, डिनोमिनेटर बढ़ गया है। एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर डिनोमिनेटर इंक्रीजेस, यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर डिनोमिनेटर इंक्रीजेस, वैल्यू हमेशा कम होता है। तो 20/80 वैल्यू इज 25%, लेकिन अभी 80 नहीं है, अभी 80 बढ़ गया है, अभी इट इज 86। डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है, वैल्यू कम होगा, इट शुड बी डेफिनेटली लेस देन 25। सो आई एम टेलिंग दैट 23.25%। ऑफ कोर्स नन ऑफ दिस भी है यहाँ पे नन ऑफ दिस भी है, बट उतना अप्रोक्सीमेशन समझ में आ रहा है कि चलो उतना तो हो जाएगा, राइट? तो ये मेथड है। अभी इसके ऊपर जो भी मतलब हम बोल सकते हैं कि व्हाट शुड बी द शॉर्टकट मेथड ऑन दिस, तो जब मैं परसेंटेज के पूरे आपको फंडामेंटल्स बता दूंगा, देयर आर मेनी शॉर्टकट्स टू टेल इन परसेंटेज, तब मैं यही क्वेश्चन शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। एज ऑफ नो अंडरस्टैंड कि मेथड क्या है, इक्वेशन क्या है, कैसे सॉल्व करना है इक्वेशन, कैसे हमने इसको सॉल्व किया, इक्वेशन फॉर्म कैसे किया। एज ऑफ नो अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस, दैट्स इट, ओके? अभी और एक मैं यहाँ पे अभी एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, अंडरस्टैंड द शॉर्टकट। सो नेट परसेंटेज चेंज के लिए एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, यू कैन राइट इट डाउन, नेट परसेंटेज चेंज, ओके? अभी नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है? इफ ओरिजिनल वैल्यू is first increased by, if original value is first increased by X% and again increased by and again increased by Y% and again increased by Y%, then what is net percentage change in original value? Then what is net percentage change in original value of, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, व्हाट इज नेट परसेंटेज चेंज इन ओरिजिनल वैल्यू। और इसको शॉर्टकट में लिखना है तो देन नेट परसेंटेज चेंज इज गिवन बाय, द नेट परसेंटेज चेंज इज, वो फॉर्मेट दे रहा था, वो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, बट अभी डायरेक्टली एक सेंटेंस दे रहा हूँ। इफ ओरिजिनल वैल्यू इज फर्स्ट इंक्रीज बाय X% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय Y%, देन नेट परसेंटेज चेंज इज गिवन बाय, ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मैं लिख के देता हूँ आपको। द फॉर्मूला इज the formula is X plus Y plus XY upon 100, X plus Y plus XY upon 100
100%, x plus y plus xy upon 100%, x plus y upon xy plus 100, x plus y plus xy upon 100%, ऐसे डायरेक्टली आप बोल सकते हैं. Okay, if original value is first increased by x% and again increased by y%, then net percentage change is given by x plus y plus xy upon 100. ब्रैकेट के सामने लिखो परसेंटेज. ओके, ब्रैकेट के सामने लिखो परसेंटेज इन दिस केस. करेक्ट, x plus y plus xy upon 100 परसेंटेज ये है. अभी यहाँ पे क्या करो, इफ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन लिखो, एंड परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन लिखो, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन लिख दो इस केस में. आया समझ में? तो इट इज सो सिंपल, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन इन दिस केस. ठीक है, गॉट इट? फाइन. तो ये हो गया आपका, इस तरीके से ये हो गया आपका एक शॉर्टकट है. ये शॉर्टकट का यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे. You can utilize this shortcut as well. तो ये shortcut लिख के ले लो. If original value is first increased by x% and again increased by y%, then the net percentage change is given by x plus y plus xy upon 100%. अगर परसेंटेज इंक्रीज है तो प्लस साइन लिखना है, परसेंटेज डिक्रीज है तो माइनस साइन लिखना है इस केस में. ठीक है. देन दूसरी अभी चीज देखोगे, दूसरी चीज देख सकते हो आप. लिखा था क्या वो, मैं तो फिर से ही करता हूँ. ओके, तो ये है नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला. तो अभी इसको मैं और एक अलग तरीके का एक क्वेश्चन देता हूँ आपको. आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन. ओके, ये पहले से ठीक से लिख के रखो. अभी एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ. द क्वेश्चन इज, ओके, द क्वेश्चन इज इफ, ओके, इफ लेंथ, ये अच्छे से लिख के रखो क्वेश्चन. इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर garden is increased by, if length of a rectangular garden is increased by 40% and its breadth is decreased by, and its breadth is decreased by 20%, then what is net percentage, change in the original area of garden? Then what is net percentage change in the original area of garden? If length of a rectangular garden is increased by 40% and its breadth is decreased by 20%, then what is the net percentage change in the original area of garden? Okay, तो आप देख सकते हो कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, अभी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है. ओके, अभी यहाँ पे ना पहली बात तो शॉर्टकट देखेंगे हम लोग. पहले तो शॉर्टकट देखेंगे. देखो ये जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था ना, वहां पे एक शॉर्ट नोट लिख के ले लो. x प्लस वाई, ये जो भी मैंने शॉर्टकट बताया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, एंड ये ब्रैकेट के बाहर मैंने लिखा था परसेंटेज. ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा था? परसेंटेज. x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100. तो ये ना इसके नीचे लिख सकते हो अबव फॉर्मूला इज एप्लीकेबल. ये लिख के ले लो, अबव फॉर्मूला इज एप्लीकेबल when there is multiplication of two elements. Above formula is applicable whenever there is multiplication of two elements. For example, if you see the area of a rectangle, there is a multiplication of two elements. Length and breadth का multiplication है वहाँ पे. Whenever you will see area of a rectangle, वहाँ पे length and breadth का multiplication है. Whenever you will see the sales by revenue देखोगे तो क्या आएगा? Sales कितने रुपए का सेल किया, तो वो कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट सोल्ड, प्रोडक्ट कितने सोल्ड किए वो मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. तो सेल से रेवेन्यू कितना है? मुझे 500 रुपए मिले, 10 रुपए का एक पेन है, 50 पेन बेचे मैंने तो मुझे 500 रुपए मिले. तो 500 रुपीज इज द सेल्स रेवेन्यू फॉर मी. 10 रुपीज एक पेन, मतलब प्राइस पर यूनिट इज 10 रुपीज एंड हाउ मच नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज 50 पेन्स. तो ये जो फॉर्मूला है ना, दैट फॉर्मूला इज, ये सेल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ऑलवेज अंडरस्टैंड this formula is applicable whenever there is a multiplication of two elements. तो यहाँ पे तो आपको पता है कि रेक्टेंगुलर गार्डन है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है ही यहाँ पे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो है ही यहाँ पे. ओके, तो व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द ओरिजिनल एरिया ऑफ गार्डन? तो गार्डन का ओरिजिनल एरिया का नेट परसेंटेज चेंज करना है. तो कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है. एक्स क्या लूंगा मैं? इंक्रीज बाय 40%. तो यहाँ पे प्लस 40 लिखूंगा, इंक्रीज बाय 40% लिखूंगा, प्लस, हाँ, ब्रेड्थ क्या हुआ है? ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 20%. ब्रेड्थ जो है वो 20% से डिक्रीज हुआ है. प्लस 40 इंटू 20, प्लस 40 इंटू 20. अभी 20 माइनस 20 करो. माइनस 20 क्यों करो? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है.
-20 करो क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिवाइडेड बाय 100, ओके, विच इज इक्वल टू 40 - 20 इज 20, 40 - 20 इज 20, माइनस ही आएगा क्योंकि 40 इंटू -20 इज -80, 0 0 0 0 कट कर दो, 0 0 वो सब कट कर दिया, 4 इंटू -2 इज -8 आ दिया. My answer is coming as 12 and the by default sign of 12 is plus. By default sign of 12 is plus. So that means ये जो फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया मैंने, मुझे पता था कि यार रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, रेक्टेंगल के क्वेश्चन के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं, x + y + xy upon 100. x is what 40% इंक्रीज, y is what 20% डिक्रीज, डिक्रीज है तो माइनस साइन पहले ही लिख के दिया है मैंने फॉर्मूला में, माइनस साइन है इसके लिए ब्रैकेट में लिखो, अच्छा रहेगा, प्लस 40 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100, 40 - 20 इज 20 एंड ये 0 0 0 0 कट हो गया, 4 2 8 -8 विच इज इक्वल टू +12. मुझे आंसर मिल गया इन दिस केस. ओके, तो ये है, लेकिन इसका भी हाँ इसमें कुछ नहीं समझा है तो पूछो, इसमें नहीं समझा है तो पूछ लो. वो जो फॉर्मूला है उसमें जस्ट आई एम पुटिंग द वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला, एक्स वाई फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस, दैट्स इट. ओके, लेकिन अभी ये तो शॉर्टकट बता दिया मैंने, लेकिन अभी कोई बंदा होगा लॉन्ग कट या सीधे तरीके से सॉल्व करना होगा उसको, वैसे भी कर सकते, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें. यू कैन चेक आउट दैट. सपोज मैंने एक रेक्टेंगल एज्यूम किया, मैंने 10x10 का रेक्टेंगल एज्यूम किया. आप बोलोगे कि सर 10x10 का तो स्क्वायर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा. रेक्टेंगल का और स्क्वायर के प्रॉपर्टीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हमें कैलकुलेशन के हिसाब से देखना है, हमें कैलकुलेशन के हिसाब से देखना है. इतना ही प्रॉब्लम है तो आप 10x20 का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैलकुलेशन करने में थोड़ा इतना सिंपली नहीं जाएगा. 10x10 की वजह से बेनिफिट क्या हो रहा है, 10x10 की वजह से बेनिफिट हो रहा है कि ओरिजिनल एरिया क्या आएगा, ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कमिंग एज 100. 10x10 का रेक्टेंगल ले रहे हो तो ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कमिंग एज 100 इन दिस केस. ओके, अभी मैं मॉडिफिकेशन करूंगा. मॉडिफिकेशन क्या कर रहा हूं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40%, इसका लेंथ में इंक्रीज कर रहा हूं 40% से, तो 10 को 40% से इंक्रीज करूंगा, 10 को 40% से इंक्रीज करूंगा. 10 का 40% क्या होता है 4, 10 को 40% से इंक्रीज किया, इट विल बी इक्वल टू 14. ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 20%, ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 20%, तो 10 का 20% क्या होगा, 10 का 20% इज इक्वल टू 2 होता है, तो 10 को 2 से डिक्रीज कर दो, 10 को 2 से डिक्रीज कर दो, विच इज इक्वल टू 8 इन दिस केस. फाइनल एरिया क्या हो गया, फाइनल एरिया 14 8 जा 112, ठीक है. तो ओरिजिनल एरिया इज 100, फाइनल एरिया इज 112. हाउ मच परसेंट इंक्रीज, 12% इंक्रीज. जो आंसर हमने x + y + xy upon 100 यूज करके निकाला था, वही आंसर हम यहाँ पे भी निकाल रहे हैं, राइट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे मेरा 12% इंक्रीज हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली आंसर निकाला, पहले मैंने विद फॉर्मूला ये आंसर निकाला था. गॉट दिस स्टूडेंट, आया समझ में आपको. तो दोनों मेथड से प्रैक्टिकली करना है तो प्रैक्टिकली करो, शॉर्टकट करना है तो x + y + xy upon 100 करके करो, तो भी एक ही बात है इसके अंदर. दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, तो ये क्या है, किस तरीके से है देख लो. ओके, तो दैट वे सेल्स एंड रेवेन्यू के लिए भी एक क्वेश्चन रहता है. इफ रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेस बाय 80%, या कुछ भी हो सकता है. इफ सेल्स बाय वैल्यू is decreased by 10% and you can say price of a product is increased by 20%, what is the net percentage change in the original sales value of a product? ऐसा क्वेश्चन मतलब सेम ही है, सेल्स रेवेन्यू एंड यूनिट्स के बेसिस के ऊपर होगा. रेवेन्यू नंबर ऑफ थिंग्स सोल्ड एंड प्राइस पर यूनिट, ये भी सेम ही फॉर्मूला है उसके अंदर. ये फॉर्मूला लिख के देता हूं आपको, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो. अभी लिख के दे दो, नहीं तो बाद में. सेल्स रेवेन्यू is equal to sales by volume, sales by revenue is equal, ये समझ में आया क्या. सेल्स बाय रेवेन्यू क्या होता है, 500 रुपए मुझे मिले. सेल्स बाय वॉल्यूम क्या है, कितने पेन बेचे, 50 रुपए बेचे, तो सेल्स बाय वॉल्यूम 50 हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय एक पेन की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट. ये फॉर्मूला ध्यान में रखो. इस फॉर्मूला भी x + y + xy upon 100 ये आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन वेयर वी डिड द बेसिक्स ऑफ परसेंटेज. वी आर गोइंग टू डू द एडवांस लेवल कैलकुलेशंस एज वेल. ओके, so thank you very much. 12% was the answer here, correct? Okay. Yes, bye, take care. Bye sir. हाँ बोलो, कुछ पूछना था.
हाँ सर सर बस वो एबीडी व्हीलर्स के एग्जांपल में आंसर क्या था सर, फाइनल आंसर? आंसर वो दे 23.25%. ओके सर। थैंक यू. Bye, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Bye. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.